Birla Balika Vidyapeeth, a renowned residential girls' school of the Birla Group, located at the western end of the educational colony of Vidya Vihar in Pilani. Birla Balika Vidyapeeth is the destination for girls to develop independent thinking and learning to promote self-discipline. On October 14th and 15th, the school organized All India IPSC Band Competition. Major General retired S.S. Nair, ABSM, Director Birla Education Trust, was invited to be the chief guest of this event. He hoisted the flag and the principal, Dr. M. Kasturi, welcomed him. IPSC band competition is a platform where the students can show their creative abilities, their talent in the field of music. And especially military music is a very difficult field to operate. So to that extent, it is a major training area for the students. And this is one area, one aspect where the schools show what can a student do out of the classroom, beyond the curriculum. To take part in this coveted event, an invitation was extended to 10 schools. Taking pride in creating history and maintaining tradition, the school has been marching proudly on Rajpath in New Delhi for last 54 years every January to be a part of the Republic Day parade. How does it feel to be the principal of a school whose the only school whose band is marching on Rajpath for consecutive 55 years? Yes, Swati, it is a really great history for us. Our band is marching for 55 years on Rajpath. It's a great feeling for me. Almost I can say all our students, all the presidents, prime ministers and the dignitaries of India who visited, they met with them. It's a proud feeling for me, and I'm proud principal to be here as Principal Birla Balika Vidyapeeth. Thank you so much, ma'am. Another thing I would like to ask you, what thing encouraged you to have the All India IPSC Band Competition 2014-15 in our school at Pilani? That's a nice question you asked me. You know that the children of Birla Balika Vidyapeeth, how laborious, the way they march and the way they practice. Because every day by 4 o'clock the children will get up and they will give the wake-up call to all Pilani, I can say. Because the way they march and the way they practice, I'm really proud of them. And wherever our children are going for the competitions, they are the winners. But still, I feel this IPSC, Indian Public School Conference, is a nice platform for our children. There are only 78 schools in India, all over India. So that I know that definitely Birla Balika Vidyapeeth will make the benchmarks. So I want to take up this competition. All-round development being one of the missions of the school encourages its girls to take part in competitions to play the band. Maintaining this philosophy, the school organized the All India IPSC Band and Yoga Competition. The chief guest saluted the march past. The girls cheered their own band. And the honor of our country. The event started with girls putting up a dare-to-do show. Girls in kimonos to bring alive the culture of Japan were next. Boys from Motilal Nehru School of Sports presented their pipe band, marching ahead with their biguls and drums.
The sound of the drums resonated in the environs of the school. सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि हमें लग रहा है कि हम पोजीशन स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वी डू मैनी मिस्टेक इन दैट टाइम एट दैट टाइम, बट वी फील बेटर। जैसे हमने प्रैक्टिस की थी वैसे हम उससे अच्छा किया, हमने यहाँ पे आके बहुत अच्छा किया है। सर ये एक वाद्य यंत्र है, ये लेदर बैग होता है, ये माउथ पीस है और ये चेंटर है, इसमें से हम उंगलियों के प्रयोग से ध्वनि निकालते हैं सर। और ये पीछे वही आवाज बढ़ाने के लिए वगैरह होते हैं, इसमें ड्रोन वगैरह लगते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर है। आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? इंटरेस्ट हमारे बैंड मास्टर सर ने हमारी क्लास ली थी एक बार, उसी में बताया इन्होंने, मुझे अच्छा लगा, फिर मैं बजाने लग गया ये। Birla Public School Pilani presented their boys brass band. Starting with the trumpet, moving to drums, bringing alive with words of "Kadam kadam बढ़ाए जा, तू सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा." Hello everybody, I am Aditi Priya and I'll be introducing you to the torchbearers of Birla Balika Vidyapeeth who contributed the most in the event All India IPSC Band Competition. Starting with Muskan Sen, who's the hostel head of the school. So Muskan, when your school received the letter of conducting the All India IPSC Band Competition, what was the first thing that struck your mind? The first thought which struck my mind was excitement, enthusiasm, and hard work, which is paying off. Tell me something about the food. Did we get special food? Yeah, we have a principal dinner on 14th night and it was really a wonderful dinner. All the team praised that, they said that you get this dinner daily or it's a special dinner. In our mess we have the best food and that's all, and we have to serve refreshment and at the same time we have to give the water, juice,
That's all. We are one of the leading public schools as far as academics is concerned. We have been, all these days, we have been getting record-breaking results. Definitely, we are maintaining 80% and above results in class 12th at board. And our students are doing excellently well. Different students have different interests, so that they can come up with their interests in a positive manner. There are different club activities also going on in the school, like journalism club, literary clubs, maths club, science club, many club activities. Sports clubs are also there, and then we have our band and many other sports festivals. Many activities keep on going on the same time. Sainik School Kapurthala came prepared with their boys brass band. Be it wind or percussion instruments, the boys play each with equal confidence. As the sounds of each of these instruments emanated, the attention of everyone present on the ground was glued to this sight. Sir, actually during first IPSC we stood second, and during second IPSC we stood first. During third IPSC again first, and this time hope so we will definitely first. It was a very, very, very nice experience for us, and we practiced a lot. Till late nights we practiced a lot. That's why you saw that all the cadets, all the girls, all audience were up. At the All India IPSC Band and Yoga competition, the judges had a tough time selecting the winner. नहीं, जजमेंट तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन क्या है कि सभी बैंड अच्छे होने पर उसको नियुक्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ या 1 नंबर 2 नंबर से ही वो एक दूसरे को लीड करते, ज़्यादा नहीं करते। तो इससे काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी। The event also witnessed a cultural evening. Of Birla Balika Vidyapeeth, Pilani. Girls of Birla Balika Vidyapeeth too followed suit and put in an equal amount of rigor. The highs and lows of sounds echoed.
Modi School Lakshmangarh presented their girls' brass band. The amalgamation of the band and its footsteps reverberated on the grounds of the school. The schoolgirls doubled their efforts, singing and playing instruments. It is very good for students. Here we get the platform to interact with other schools, other participants. We get a lot of exposure. I'm very confident about my performance. I hope the best team wins. Girls from Maharani Gayatri Devi School of Jaipur came in full swing with their brass band. Left, right, left, and the band begins. It was very good. In fact, I would like to say this because this is the first time we are performing in IPSC, and I really want to congratulate my team. They did it very well. We are not nervous. It's just that we have given our best. It's upon the judges, whatever points they have given us. Birla Balika Vidyapeeth not far behind with the girls' brass band. Heads high up, the girls marched ahead with pride in the premises of their own school with the crowd cheering them. The captain of the team sought permission to start the event.
Practice makes one perfect. The band sang with Hum Honge Kamyab Ek Din. The school provides learning according to the developmental needs of the child so that the child is stimulated by the challenge it offers. Birla Balika Vidyapeeth inculcates discipline through positive and negative reinforcements to prepare students to meet the challenges ahead. Principal, teachers and students present clap to motivate the bands. Teachers met the students to felicitate their performance. Performing in our school and winning is more important because we can't allow anyone to come to our school and then win. We'll have to win, and even in other schools always we want to be first, and we don't want anyone to defeat us. We want this glory. The best were awarded.
yoga, control over mind and body. Students proved this to be under their control, performing dare-to-do acts. Major General retired S.S. Nair, ABSM, Director Birla Education Trust, was invited to be the chief guest of this event. Students displayed their agility, performing tough yogasanas. Students' flexible body movements conducted jaw-dropping yogasanas. Clearly, they have mastered their mind and body, and their asanas reflect that. Students were felicitated for their performance. The program came to an end with the flag being brought down. Looking forward to another year of performance and galore. दूरदर्शन नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। गुरु नानक इंडोर स्टेडियम और पंजाब जो 6 बार नेशनल चैंपियन रह चुका है, उसका मुकाबला 7 बार की नेशनल चैंपियन तमिलनाडु से। दोनों टीमों की यदि बात करें तो पूल ए से पहले स्थान पर रही पंजाब। ये टीम है लवनीत सिंह जूनियर इंटरनेशनल, महेश गुर इकबाल, भरतदीप, रणबीर, तलविंदर सिंह जो कि टीम के कैप्टन है, इंटरनेशनल प्लेयर, पलप्रीत, हरमिंदर, अमृतपाल, जगदीप सिंह और सतनाम सिंह। टीम के कोच गुरकृपाल सिंह। और ये है तमिलनाडु टीम की लाइनअप। सिद्दीक रजाक नंबर 4, सीवी दिनेश 5, हरीश
कप्तान है टीम के, नंबर 6 की जर्सी पहनकर आए हैं। एस राम कुमार, विनोद, प्रवीण कुमार, MA रघुराम, अखिलन, विनोद, काशी राजन, रिकिन और इस टीम के कोच हैं थीना करण। इस समय कोर्ट पर सफेद कलर में जो टीम आपको नजर आ रही है, पंजाब के प्लेयर नंबर 10 जंप बॉल के लिए तैयार हैं। तलविंदर सिंह शाही जो कि टीम के कप्तान है, नंबर 9। नंबर 14 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सबसे लंबे कद के खिलाड़ी सतनाम सिंह। दूसरे स्थान पर रही थी उत्तराखंड से एक मैच हारने के साथ तमिलनाडु, जो इस समय सेमीफाइनल मुकाबले में पंजाब के सामने। तो 63वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग दूसरा सेमीफाइनल, गत वर्ष की विजेता पंजाब और गत वर्ष की उप विजेता तमिलनाडु के बीच। और थोड़ा सा दामोदर इनकी पहचान के लिए भी मैं बता दूं अपने दर्शकों को, सफेद रंग में है पंजाब की टीम और काले रंग में है तमिलनाडु की टीम। और ये शुरुआत हुई तमिलनाडु के नंबर 9 प्रवीण कुमार ने 2 अंक जीत किए और महज 3 सेकंड्स में देखे 2 अंक जीतकर अपनी टीम के लिए खाता खोला। दोनों ही टीमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के पास एक 14 नंबर का खिलाड़ी है सतनाम सिंह, जो कि अमेरिका में बाकायदा ट्रेनिंग ले रहा है। जाहिर है देखना यह है कि आज उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। तलविंदर, बहुत ही एग्रेसिव खेल के लिए जानी जाती है पंजाब की टीम। देखिए बॉल को रोटेट किया, ड्राइव इन करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी रक्षा पंक्ति और एक बार फिर बॉल को अपनी पोजीशन में लेने में कामयाबी मिली तमिलनाडु को। 3 पॉइंटर जोन से 45 डिग्री से रिबाउंड और ऊंचे कद का फायदा उठाया। देखिए किस खूबसूरती से सतनाम सिंह ने उस कामयाब शॉट को नाकामयाब बनाया और उन्होंने दिखा दिया कि अमेरिका में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसका वो आज बाकायदा प्रदर्शन भी दिखाएंगे इस सेमीफाइनल मुकाबले में। फ्री थ्रो लाइन पर पंजाब के कप्तान तलविंदर जीत सिंह, 2-2 की बराबरी पर दोनों टीमें और आगे बढ़ने का ये शुरुआती क्षणों में मौका। और तीसरा अंक जीत किया पंजाब 3 तमिलनाडु 2। और बहुत तेज गति से इस दूसरे सेमीफाइनल मैच की शुरुआत। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कई मुकाबलों में खेल चुकी हैं, तो जानते हैं कि किस तरह से खेल खेला जाए। बहुत दूर से एक तरह से पोजीशन में नहीं थे, उसके बाद भी अटेम्प्ट लिया वहां। और ये एक और फाउल डिफेंसिव कोर्ट में। ये देखें आप, जिस तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की प्रथम सिंह। फाउल, तो 2 फ्री थ्रो, पंजाब 3। पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट, अमृतपाल नंबर 12। दूसरा फ्री थ्रो भी कन्वर्ट, तो स्कोर 5-2। बॉल रोटेशन तमिलनाडु का, बहुत अच्छा डिफेंस में हेल्प करते हुए रिबाउंड। 1-on-1 की कोशिश, पास देने की कोशिश सतनाम को। प्रथम सिंह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन, लेकिन वहां पर डिफेंस के लिए आ गए थे पलप्रीत, जिस कारण सही तरह से अटेम्प्ट नहीं ले पाए प्रवीण कुमार तमिलनाडु के। ये देखें आप, जैसे ही कोशिश की तो वहां डिफेंस पर आ गए थे पलप्रीत, लंबे कद के खिलाड़ी। तलविंदर, और यह ऑफेंसिव फाउल तलविंदर का। तो अच्छा डिफेंस
तमिलनाडु टीम का। स्कोर है 5-2 पंजाब के पक्ष में। ये देखें आप, जिस तरह से हाथ से पुश किया था, और ये फाउल तलविंदर पर, पहला पर्सनल फाउल। काउंटर अटैक अमृतपाल, रणवीर, तलविंदर, बहुत ही बढ़िया एयर में स्टे, और उसके बाद बॉल को बहुत आराम से रिलीज किया। ये देखें आप, बहुत ही शानदार मूवमेंट, अपने ऊपर अपनी जंप पर पूरा कंट्रोल, एयर में स्टे हुए, और यही बास्केटबॉल खेल की एक लोकप्रियता है। जब इस तरह के क्षण आते हैं सुनीता, तो निश्चित तौर पर बहुत शानदार एक मोमेंटम बन जाता है, दर्शकों का आई कैचिंग मोमेंट बनता है। बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों के दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। इस तरह का शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी, दामोदर एग्रेसिव खेल खेलेगी पंजाब। शुरुआती क्षणों में ही हमने देखा कि कितना एग्रेसिव खेल खेल रही है। ये है कप्तान तलविंदर सिंह, जिनकी बात कर रहे थे दामोदर। हालांकि कद कम है, 6 फुट 5 इंच कद है, लेकिन अगर रफ्तार की बात करें, गजब की रफ्तार है, और यहाँ कप्तान पहुंचे हैं। स्कोर है पंजाब 7 तमिलनाडु 4। कप्तान तलविंदर सिंह, लेकिन चूंकि दूसरा फ्री थ्रो, 1 पॉइंट लेने का एक आसान मौका है यहां, और इस पर कोई गलती नहीं कि 1 अंक जीत के अपनी टीम को पहुंचाया 8 पर। आक्रमण तमिलनाडु का, तमिलनाडु के नंबर 9 प्रवीण कुमार। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ऊंचा कद है, तो जाहिर है ब्लॉक अच्छे हैं, लेकिन अगर रफ्तार की बात करें तो ये सतनाम जो कि अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टीम के खिलाड़ी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्राप्त है इन्हें, और उसी का एक और उदाहरण पेश किया सतनाम ने लगातार 2 कामयाबियां अर्जित की। ऊंचा कद है, 6 फुट 8 इंच कद है, मात्र 18 वर्षीय खिलाड़ी हैं सतनाम। स्कोर पहुंचा है पंजाब 10 तमिलनाडु 7। आक्रमण एक बार फिर पंजाब का, और एक बार फिर उसी अंदाज में कप्तान तलविंदर पहुंचे और ऊंचे कद से बॉल को टैप किया सतनाम ने, और 2 अंक अर्जित किए। एक बार फिर देखिए, यहाँ टैप किया था और बॉल को अंदर पहुंचाया, और 2 अंक अर्जित किए। पंजाब 12 तमिलनाडु 7। और यहाँ तमिलनाडु टीम जिस पर निर्भर करेगी रिकिन। ये देखिए, ऑफेंसिव रिबाउंड सतनाम के सामने, उसके बाद लेफ्ट हैंड से बोर्ड का सपोर्ट, और 2 अंक उन्होंने टीम को दिलाए। तो पंजाब 12 तमिलनाडु 9। पहला क्वार्टर 63वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का। अच्छा डिफेंस रिकिन का, काउंटर अटैक 2-2 की पोजीशन, और ये ब्लॉक, पहले खिलाड़ी को फेंक दिया कप्तान हरीश। प्रथम सिंह ड्राइव इन, एक और ब्लॉक, इस बार पलप्रीत ने ब्लॉक किया। ये देखिए आप, प्रथम सिंह की ड्राइव इन, लेफ्ट हैंड से ब्लॉक, सतनाम भी वहां पर आए थे, और यही सब कुछ दर्शक देखना चाहते हैं। और इस बार गलत पास रिकिन का, तो पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ। डंक देखना चाहते हैं दर्शक, अच्छे ब्लॉक्स देखना चाहते हैं, अच्छी लॉन्ग शूटिंग देखना चाहते हैं, एयर में स्टे होकर शॉट देखना चाहते हैं, और बास्केटबॉल खेल में जो जो मूवमेंट आते हैं वो सभी देखना चाहते हैं। और ये देखें आप, एक बार फिर कोशिश तलविंदर, सतनाम, और ये फाउल रिकिन का। फीवा रेफरी राजनारायण पात्रो ओडिशा के। ये देखें आप, हवा में रुक के उसके बाद बॉल रिलीज की, और रिकिन का फाउल, जिस तरह से उन्होंने पुश किया था सतनाम को। तलविंदर 0 एंगल से ड्राइव इन, ऑफेंसिव रिबाउंड, सतनाम सिंह, बोर्ड का सपोर्ट, 2 पॉइंट। और IMG रिलायंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं अमेरिका में सतनाम, जो 4 प्लेयर्स भेजे गए हैं अंडर 14 एज ग्रुप के, उन 4 प्लेयरों में से एक हैं सतनाम। तो स्कोर है पंजाब 14 तमिलनाडु 11, 3 पॉइंट की लीड। बॉल एक बार फिर पंजाब की,
कप्तान, और एक बार फिर सतनाम अपनी फेवरेट जगह पर पहुंचे थे लेकिन कोई मौका नहीं मिला। आक्रमण रहे तमिलनाडु का। प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग, कोई मौका नहीं। बाएं हाथ से बॉल को कंट्रोल किया और 2 अंक अर्जित किए रिकिन ने। और रिकिन की इस कामयाबी के साथ अंतर यकीनन कम हुआ है। एक बार फिर अच्छा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं सेमीफाइनल का मुकाबला होना चाहिए। अच्छी बास्केटबॉल देखने को मिल रही है पंजाब के लुधियाना शहर के गुरु नानक इंडोर स्टेडियम में, जहां खेली जा रही है 63वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप। और आज इन प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल मुकाबले चल रहे हैं। पुरुष वर्ग का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आमने सामने है पंजाब और तमिलनाडु की टीम। ये पहला क्वार्टर चल रहा है, 3 मिनट का समय बाकी है इस पहले क्वार्टर का। काले रंग में तमिलनाडु, सफेद रंग में पंजाब। ये ड्राइव इन किया लेकिन नेगेटिव पास और 3 पॉइंटर की कोशिश, अच्छी कोशिश थी। और ये पास ब्रेक, अमरजीत, कोई गलती नहीं की अमरजीत ने, बास्केट के नीचे आए और 2 अंक अर्जित किया अंडर द बास्केट। आसान अंक, अच्छी सूझबूझ का प्रदर्शन दिया। एक बार फिर देखिए, और जिस तरह से सतनाम ने कोशिश की थी वही कोशिश थी इस समय तमिलनाडु के नंबर 14 की, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया रिकिन का। तलविंदर, बहुत ही अच्छी रक्षा पंक्ति, गजब का तालमेल पंजाब की टीम में। 3 पॉइंटर जोन से 45 डिग्री से कोशिश, लेकिन अंक नहीं जुटा पाए। स्कोर 16 पंजाब, तमिलनाडु 15। 2 अंक जीत के रिकिन ने और अपनी टीम को पहुंचाया 15 पर। बहुत अच्छा मुकाबला, मात्र 1 अंक का फासला है दोनों टीमों के बीच। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नजर आया पिछले 2 अटैक पर तमिलनाडु का, ऐसा लगता है कि तमिलनाडु टीम अब वापसी करती हुई। ये ब्लॉकिंग डिक्लेयर की, ये देखें आप, 2 फ्री थ्रोज, जो लीड 16-15 पर ले आए थे तमिलनाडु के प्लेयर्स। 2 फ्री थ्रोज, तलविंदर इस समय फ्री थ्रो लाइन पर, कप्तान टीम के, लुधियाना के रहने वाले हैं और 2004 में कुआलालंपुर में इंटरनेशनल एबीसी में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मनीला 2005, 2005 में ही विलियम जोन्स कप और कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में भारतीय टीम के मेंबर रह चुके हैं। तो अब 18-15 स्कोर है पहले क्वार्टर में। 1 मिनट 39 सेकंड का समय बाकी। गत वर्ष की दोनों फाइनलिस्ट टीमें इस समय आमने सामने इस सेमीफाइनल मैच में। नेशनल गेम्स की चैंपियन है पंजाब, जिन्होंने उत्तराखंड को फाइनल हराया था रांची में। और इस बार रिकिन, प्रथम सिंह ऑफेंसिव रिबाउंड,